Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. This is Vijay. Hope you're doing well. So this is the fourth part in the decision making series, learning series, and today we are going to take a look at few sets which are actually based on strategies, right? Strategy based sets, right? So let's start with the first set. And before we start, actually, this is the current schedule of ZAT24 booster workshops, right? So we are on the 11th of Monday, right? So for whosoever, this is our first session. So we have been doing continuous sessions, daily sessions on ZAT. So if you have not been doing this series, please go ahead and start with the first video itself, right? We have been bringing free lessons for ZAT preparation, right? Also for the CAT 24 aspirants, this is the current batch we are putting forth, right? And you can go and check this out. Also, please go and join the Telegram group for further information, right? Let's start with the first set. So there is only one question based on this particular set. So let's read this. This is a single question based set. So, Innovative Institute of Business (IIB) has decided to be decided to be the first green campus in India, right? IIB administration has advised all campus residents to reduce carbon footprints. Carbon footprints. IIB faculty members did a brainstorming exercise and came with the following suggestions. Like, क्या दिया हुआ है एक बार? Let's read this again. So this IIB college wants to be the first green campus. Green campus मतलब like वही सिंपल कार्बन एमिशन कम करने का. कार्बन एमिशन कम करने का मतलब लाइक जितना भी फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड आपका एनर्जी कंजम्पशन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे एंड कार्बन एमिशन उससे कम होगा. दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ अ ग्रीन कैंपस. सो द एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइज ऑल द कैंपस रेसिडेंट हु आर द कैंपस रेसिडेंट्स स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टी मेंबर्स किसी कैंपस के अंदर एजुकेशन कैंपस के अंदर दीज आर द बेसिकली रेसिडेंट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑल्सो. सो दे हैव बीन एडवाइज टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट. को बोल दिया गया है कि आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. IB faculty members did a brainstorming exercise. They thought about it and came up with the following suggestions, right? So these are the five suggestions. Let's first look at what has to be done, right? What is the criterion? Which of the following options would be the most preferred sequence of actions to reduce carbon footprints of campus? So pretty straightforward. We have to like take a selection of the options which are preferred sequence of actions to reduce the carbon footprints. So हमारा target बहुत clear है. We are going to look at three options because option में मेरे को पता चल रहा है. So three steps have to be taken जो directly responsible होने चाहिए किसके लिए carbon footprint कम करने के लिए. So let's try and evaluate all the options maybe with respect to कि उनका impact कैसे पड़ने वाला है, whether they are actually going to take care of this condition or not. Condition as in reduce the carbon footprint. Let's start with the first statement. Replacing energy so electricity source for street lights with solar panels. Perfectly fine. This is what is actually going to reduce the carbon footprint. Replacing electricity source for street lights with solar panels. So this is a good option. This is actually going to give me a direct connect between what has to be done and what is a supposed suggestion, right? So ये directly आपका इसको impact करेगा. So this statement has to be there. Perfectly fine. Replacing the existing buildings with environment friendly buildings. So directly again existing buildings जो है उनको environment friendly buildings से हम replace करने वाले हैं. So this is also going to reduce my carbon footprints, right? I hope ये आपको समझ में आ रहा है. Directly इसका impact पड़ रहा है. So this statement is also good. Organizing a seminar on towards a sustainable future involving all students, staff and experts from around the country. Now ये स्टेटमेंट सुनने में तो ठीक लग रहा है बट द पॉइंट इज आपको इसने कैंपस के रेसिडेंट्स को डायरेक्टली बोल दिया गया है यू हैव टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स एंड आपका क्राइटेरियन बड़ा क्लियरली डिफाइंड था. वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट प्रेफर्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू रिड्यूस कार्बन फुट. हमें रिडक्शन पे ध्यान देना है, राइट. ये जो ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ सम काइंड ऑफ अवेयरनेस. अवेयरनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस. हमारे डायरेक्टली हमें फुटप्रिंट कम करना ही है. हम अवेयर कराने पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट. सो एज कंपेयर टू द फर्स्ट टू ऑप्शंस या फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स, अगर आप इस थर्ड स्टेटमेंट को इवेलुएट करोगे, दिस इज लाइक a awareness kind of a situation. Organizing a seminar on towards a sustainable
फ्यूचर इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट स्टाफ एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, अवेयरनेस फैला देगा। मे बी लॉन्ग टर्म में जाके पीपल रियलाइज कि हाँ खुद से करना है, बट ये करेंटली जो मेरा करंट सिचुएशन है, आई हैव टू रिड्यूस डायरेक्टली, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये नहीं पड़ रहा है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज नॉट समथिंग आई एम लुकिंग फॉर। आई गो ahead with the fourth statement now. Introducing a compulsory course on sustainability to increase awareness. Again, this third and fourth are basically almost same. They are creating awareness of some kind. So these two statements will have an indirect impact, right? They will have an impact, maybe in the long term, maybe in the mindset of the people, they are going to impact, like, but currently they are not going to reduce the carbon footprint directly. So these two statements are not what I'm actually looking for. Let's read the fifth statement. Conducting an initial energy audit, right? So we'll have to take into account कि current energy consumption आपका कितना है, कहाँ से किसको हम मैनेज कर सकते हैं, कितना कितना requirements है, right? So that is our basically energy audit. So conducting an initial energy output to explore where IIB can reduce carbon footprints, right? So we are getting a very clear cut idea about what are the different energy consumption within the campus, एंड ऑडिट के थ्रू विल नो कि कैसे कैसे कहाँ पे हम कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, दिस इज अ डायरेक्ट स्टेप, बिकॉज दिस इज इन लाइन विद व्हाट इज टू बी डन. दिस इज directly impacting my criterion defined in the problem itself. So for me, the first, second and fifth statements are going to directly go ahead with the plan, that is to reduce carbon footprint. So basically I am looking for an option which contain first, second and fifth. So is there an option which contain first, second and fifth? Yes, the third option, right? So fifth, first and second, these are the three statements which are the most preferred sequence of actions to reduce carbon footprint. Also अगर आप sequence के corresponding देखो, right, इसमें तो मैंने directly first से start कर दिया था. Sequence wise भी अगर ये like ये कहना चाहता है कि this is impacting most, फिर ये second, फिर ये third, तो फिफ्थ वाला इज एक्चुअली गुड, राइट? फिफ्थ वाला इनिशियल पहले हम ऑडिट कराते हैं, ऑडिट कराने से ये पता चलता है वेयर द कार्बन फुटप्रिंट्स कैन बी रिड्यूस. उसके बाद वी कैन फॉलो विद द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द सेकंड स्टेटमेंट, राइट? बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव में पहले भी अगर आप वैसे भी नोटिस करोगे तो रिप्लेसिंग एनर्जी, सो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ स्ट्रीट लाइट्स और सोलर पैनल्स विल कम बिफोर बिल्डिंग्स. ही एंटायरली चेंज करना थोड़ा लाइक कॉस्टली ऑप्शन है. तो अगर हम सीक्वेंस वाइज भी देखते हैं तो फिफ्थ, फर्स्ट एंड सेकंड विल आल्सो फॉलो, राइट? सो दिस सिंगल क्वेश्चन बेस्ड सेट. ऐसे भी आपको सेट्स मिलते हैं डीएम के पेपर में, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. Let's start with a second set. Now this will comprise of around two problems, I guess, for second test. There are two problems on this set. Let's start reading this. So MBA entrance examination comprises two types of problems: formula based problems. So there are two problems: formula based problems and application based problems. From the analysis of past data, Interesting School of Management, good name, ISM, Interesting School of Management, ISM, observes that students good at solving application based problems are entrepreneurial in nature, right? So what is saying, there has been a kind of a data, right? रिसर्च के बाद एक डेटा आया. वो डेटा क्या बोलता है कि द स्टूडेंट्स who are good at solving application level problems, right? So there were two problems, formula based and application level. What he's saying is people या students who are good at solving application level problems are entrepreneurial in nature. ये डेटा बताता है, ठीक है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम train them to spot formula based problems and answer them correctly so as to obtain the required overall cutoff percentile. तो ये क्या बोलता है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्या कर रहे हैं? दे आर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, द फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम. इनको स्पॉट करा, मतलब बेसिकली टू फिगर देम आउट कि हाँ देखो ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करके ओवरऑल कट ऑफ हमने क्लियर कर दी, right? That is the kind of a problem they are having maybe. Thus students in general shy away from application based problems and even those with entrepreneurial mindset target formula based problems, right? अब ये क्या बोलता है कि just because formula based problems कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर रहे हैं कि इसको स्पॉट करो, उससे तुम्हारा ओवरऑल कट ऑफ निकल जाएगा. सो हेंस क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स इन जनरल शाई अवे फ्रॉम एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स. सो स्टूडेंट्स आर नॉट रियली सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, राइट? अब देखो यही है, कहीं ना कहीं मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो ISM है ना, वो चाहता है मे बी ऑन्टरप्रेन्योरियल स्टेट ऑफ माइंड के स्टूडेंट्स.
एंड ऑन्टरप्रेन्योर स्टेट ऑफ माइंड के स्टूडेंट्स कैसे वो पहचान रहा है, द स्टूडेंट्स विल बी सॉल्विंग दीज एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स. तो these are the kind of students they are basically looking for. But हो क्या रहा है, currently students are focusing on these set of problems, the formula based problems, उससे overall cut off clear कर ले जा रहे हैं, right? half of a mark is deducted for every wrong answer. तो negative marking तो है for every wrong answer. This is the current situation. Now let's start reading this again, the second part. ISM wants more students with entrepreneurial mindset in the next batch. तो बेसिकली उनका पर्पस वही है, क्राइटेरिया बहुत क्लियर कट है. दे वांट स्टूडेंट्स हु हैव अ entrepreneurial mindset, राइट? सो वो कैसे ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, इफ आई थिंक अबाउट इट. So basically they are going to do something of sorts such that students have an incentive of some kind. Yeah, students are maybe forced through a certain extent to solve these application level problems. ऐसा कुछ ही आपका होने वाला है, ठीक है? To achieve this, ISM is considering following proposals. So they basically 4 proposals. Let's read the question again. Which of the following proposal or combination of proposal is likely to identify student with the best entrepreneurial mindset? So again, this is in line with what was given. So हमारा clear cut purpose ये है, we have to make students attempt these application level problems. और ये कैसे होगा? थ्रू सम मे बी इंसेंटिव ऑफ सम काइंड, मे बी उनको लाइक आपको फोर्स करना पड़ेगा, या पेपर इस तरीके का आपका बन जाना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो रही हो, ठीक है? नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स वन बाय वन एंड लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू एलिमिनेट एंड लेट्स रीच द करेक्ट आंसर, ठीक है? नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट, preparing a question paper of 2 parts, part A and part B, of duration 1 hour each. Part A and part B would consist of formula based problems and application based problems respectively. So part A है, part B है, right? दोनों का टाइम सेम है. Part A and part B would comprise formula based and application based problems respectively. After taking away part A, part B would be distributed, right? Part A पहले हो जाएगा, उसके बाद part B डिस्ट्रीब्यूट होगा. The qualifying cutoff percentile would be calculated on the combined scores of the 2 parts. So इसमें फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे qualifying cutoff? कंबाइंड स्कोर्स ऑफ द 2 पार्ट्स, ठीक है? तो दोनों का मिला के कंबाइंड के बेस पर हम जज कर रहे होंगे, ठीक है? ये स्टेटमेंट आपका कंबाइंड के बेस पे आपको इंफॉर्मेशन देता है. बट अगेन प्रॉब्लम मेरे को यही समझ में आ रही है कि इस स्टेटमेंट में कि ओवरऑल में वो कंबाइंड देखने वाला है. अब कंबाइंड देखने वाला है तो फिर तो कोई इंसेंटिव रहा ही नहीं ना. अब मेरे को कंबाइन वाला है तो मैं इसको ज़्यादा सॉल्व कर दूंगा, राइट? और इसको कम सॉल्व करूंगा. ऑल्सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो इसको सॉल्व करके दे विल सीक इट, जिनका एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम बहुत अच्छा नहीं होगा, बट स्टिल बिकॉज ये पार्ट उन्होंने अच्छे से कर लिया, तब भी ओवरऑल कट ऑफ उनका क्लियर हो सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट सो गुड. आई विल रीड द सेकंड स्टेटमेंट अगेन. फर्स्ट, preparing a question paper comprising part A and part B, almost like the first statement. While part A would comprise formula based problems, part B would comprise application level problems. ऐसा ही आपका कुछ उसमें भी दिया हुआ था, application level problems, each having a separate qualifying cutoff percentile. Now this statement, the second statement and the first statement, right, both these statements are focused on the cutoffs, right? कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं. इन दोनों में से हम कोई एक स्टेटमेंट लेने वाले हैं, एंड इफ आई कंपेयर दीज टू स्टेटमेंट्स, सेकंड इज अ बेटर ऑप्शन, राइट? व्हाई सेकंड इज अ बेटर ऑप्शन? बिकॉज फर्स्ट वाले में वही प्रॉब्लम है जो मैं आपको समझाया यहाँ पे. ओवरऑल कट ऑफ लाइक दोनों मिला के डिसाइड होने वाला है. दोनों को मिला के डिसाइड होने वाला है तो प्रॉब्लम तो रेक्टिफाई हुआ ही नहीं. देयर विल बी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स विल बी फोकसिंग ऑन दीज फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स. इसको ओवरऑल मैक्सिमाइज करके, भले इसके थोड़ा बहुत करके भी, इसको मैक्सिमाइज, इस पार्ट को मैक्सिमाइज करके they can go ahead and clear the cutoff. But the second part, just because there is individual section cutoff, तो students इसको क्लियर किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते. इवन दो दे कैन इन्फ्लुएंस दिस, इसको पूरा मैक्सिमाइज कर लिया, बट इफ दे डोंट हैव दैट एंटरप्रेन्योरियल बेंट ऑफ माइंड, दे वुडंट बी रियली एबल टू क्लियर दिस एप्लीकेशन लेवल वाला कट ऑफ. सो फिर आपका वो उनका सिलेक्शन नहीं होगा. सो इन अ वे, इफ आई हैव टू सेलेक्ट बिटवीन फर्स्ट एंड टू, first is not going to take care of my criteria defined, so second is a better option, right? So first और second में second होना चाहिए. Let's read the third and fourth statement also. Assigning 1 mark for formula based problems and 2 marks for application based problems as an incentive
for attempting application based problems. So basically this is a kind of differential marketing. इसको हम differential marketing, differential marking. डिफरेंशियल मार्किंग क्या होता है? अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग आप नंबर देते थे, राइट? नाउ डिफरेंशियल मार्किंग, तो असाइनिंग 1 मार्क फॉर फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, फॉर्मूला के लिए हम 1 नंबर दे रहे हैं, एंड 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, एप्लीकेशन लेवल को थोड़ा प्रमोट करना चाह रहे हैं. सो बेसिकली देयर इज इंसेंटिव फॉर स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट दोज एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था. सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. इस तरीके से आप ये इंश्योर कर सकते हो पीपल हु हैव that entrepreneurial bent of mind, they will be attempting application level problems because this is actually incentivizing them. उससे ज़्यादा नंबर मिल रहा है, सो आप उस टाइप के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर ले जाओगे. सो थर्ड इज लुकिंग गुड. लेट्स रीड द फोर्थ स्टेटमेंट. अलॉटिंग 1 मार्क फॉर फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड 3 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स विदाउट मेंशनिंग दिस इन द क्वेश्चन पेपर. राइट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. अब जैसे अगर आप थर्ड और फोर्थ को देखोगे तो दोनों में ही डिफरेंशियल मार्किंग है, बट थर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली बेटर. आप पहले बताओगे ना उनको कि हाँ इसका डिफरेंशियल मार्किंग है, तभी तो वो जाके अटेम्प्ट करेगा. अगर आपने मार्किंग स्कीम डिफाइन कर दिया है बट उनको बता नहीं रहे हो आप स्टूडेंट्स को, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बना उसका. दे वुडंट नो. तो वो तो फिर फॉर्मुला बेस्ड प्रॉब्लम से कर रहे होंगे, बिकॉज द कोचिंग इंस्टीट्यूट हैव बीन ट्रेनिंग देम टू स्पॉट द फॉर्मुला बेस्ड प्रॉब्लम. So out of the third and fourth, definitely third is a better option for me. So what I'm looking for is second and third. So which of the following proposal is likely to identify students with best entrepreneurial mindset? I'd go for second and third. So second and third, that is the fourth option. Right? So simple elimination के through आप जा सकते हो if you compare the different kinds of options available. ठीक है? Now let's take a look at the second problem of the same set. So the initial part remains same. Let's read the question wala part. ISM conducts a common entrance examination every year. This year the question paper would comprise 60 questions with an equal mix of formula based problems and application level problems. So 60 questions में there is an equal mix, बराबर बराबर defined है आपका. All questions would carry equal marks, right? क्वेश्चंस का मार्किंग स्कीम भी बराबर है, तो देयर इज नो डिफरेंशियल मार्किंग. दिस इज वेरी बैलेंस पेपर. बालाजी इज अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. बालाजी इज स्टूडेंट में भी. Before appearing for the examination, he gets the following information from coaching institutes. Right, the following information is this 6 statements. Okay, what is the condition? Based on the above information, which of the following options would help him to be better prepared for the examination? एग्जामिनेशन के लिए उसको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे he is better prepared for the examination itself, right? So we are looking at information which is going to help me in the examination, ऐसा कुछ. Let's read the statement, we'll have more clarity. First, application oriented problems take more time to solve in an examination hall, right? So obviously सही है, because एक certain टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई देखो एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स होंगे, उनको करने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा. सो आई कैन गो अहेड एंड प्लान अकॉर्डिंगली, राइट? सो दिस इज अ गुड स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन पेपर, बिकॉज वही क्राइटेरिया है, हैव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. सो दिस इज गिविंग इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस, राइट? ओके, सेकंड स्टेटमेंट, चांसेस ऑफ सिली मिस्टेक्स वुड बी लो इन एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स. ये भी अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि भाई ठीक है मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, but chances of silly mistakes would be low in application based problems. This is a good information, right? Third statement, ISM would assist the students with bank loans to start a venture. Definitely out of context. It has nothing to do with bank loans and starting a new venture. ISM क्या provide कर रहा है? This is a very later stage criteria. It has nothing to do with the examination. So I can definitely eliminate this third option. Also, what I can do is जिस भी ऑप्शन में थर्ड वाला होगा ना, I can go ahead and eliminate that. So third, this one will be eliminated, right? Fourth option, options are generally confusing for formula based problems. This is again a kind of information with respect to the formula based problems. So again, I'm looking for this kind of information. This is perfectly fine. Practice makes a man perfect can apply only to formula based problems. Now ये बता रहे हैं formula based problems है ना, उसमें जितना ज़्यादा practice करोगे उतना ज़्यादा perfect करोगे. ओनली टू फॉर्मुला बेस्ड प्रॉब्लम से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि एप्लीकेशन लेवल प्रॉब्लम्स में से प्रैक्टिस करने से काम नहीं बनेगा. मे बी यू नीड टू बी कॉन्सेप्चुअली गुड ऑल्सो. सो दिस इज अगेन एन इन्फॉर्मेशन विच इज गोइंग टू हेल्प मी बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी है ना, जितने को अभी मैंने डॉट लगा रखा है, दीज आर इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. अगर मेरे को इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जाए
तो आई कैन प्रिपेयर फॉर दोज क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, आई कैन मेक अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर दैट पेपर, राइट? दिस इज व्हाट इज देयर. And the final statement, sixth statement, students get very good campus job. Again, this has nothing to do with being better prepared for the examination. This comes at a very later stage. Students get very good campus job. इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, eliminate कर सकता हूँ. So my sixth statement should also not be there. बाकी सारे statement होने चाहिए. तो sixth statement वाले पहले मैं eliminate भी कर दूंगा. तो ये आपका eliminate हो जाएगा. सिक्स वाला और कहीं है नहीं. बट येस अगेन ऑल दीज फोर स्टेटमेंट शुड बी देयर, राइट? इनमें से कोई एक या दो नहीं रहेगा. सारे ही स्टेटमेंट आपके अच्छे स्टेटमेंट्स हैं. दे आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प मी बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. सो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. Fifth is the correct answer for me, right? Because all these statements are perfectly valid statements with regards to the criteria given. Right, so I would really classify this question as a very easy problem as compared to the previous one. देखो यही बेसिक आइडिया मैं आपको बता भी रहा हूँ लाइक पहले वीडियो से, कि इसमें आप तब तक डिसाइड नहीं कर पाओगे जब तक आप एकदम क्वेश्चन को ना पढ़ लो, उसके सारे ऑप्शंस को ना पढ़ लो. एंड विद इन वन सेट इटसेल्फ there can be an easy question, there can be a moderate question, there can be a difficult question, depending on how the question is formed, depending on the options are, right? बहुत confusing option होते तो difficult हो जाता. सिंपल ऑप्शंस हैं इस वाले प्रॉब्लम में, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये दोनों तो एलिमिनेट होने वाले हैं. ये क्लियर कट आपके सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन से, एंड हेंस दिस मेक्स दिस प्रॉब्लम विद इन दिस सेट इजी, while the previous problem maybe was a moderate one. थोड़ा आपको ज़्यादा elaborate करना पड़ेगा. Not too difficult I would say, but yes, this one is more like on the easy part. ठीक है? Now let's move to the third set and let's solve a few problems in this one also. So the third set, the Disciplinary Committee of National Political Party (NPP), right, is meeting today to decide on the future of two of their party members, Mr. Loyal and his son, Mr. Prodigal. So there are two people involved, Mr. Loyal and his son, Mr. Prodigal. Mr. Prodigal is the prime accused in the brutal murder of Mr. Victim. So he has been accused. Accused का meaning बहुत clear cut होना चाहिए. अभी proven नहीं है. He is the prime accused in the brutal murder of Mr. Victim, an opposition party leader. So Mr. Victim कौन है? Is an opposition party leader. Now Mr. Prodigal is in police custody and his appeal for bail has got rejected. ठीक है? Mr. Loyal claims that his son is innocent and Mr. Victim's death was a result of internal rivalry in the opposition party. So he's trying to defend his son. Now, though Mr. Loyal is not accused in this case, now Mr. Loyal is not accused in this case, his weakness for his son is well known. अब ये स्टेटमेंट ना ये बता रहा है कि ऐसा नहीं हम देख सकते कि भाई ये फादर उसको सपोर्ट नहीं करेगा. सो बहुत क्लियर कट डिफाइंड है कि द फादर मिस्टर लॉयल इज गोइंग टू सपोर्ट मिस्टर प्रोडिगल. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन हियर, राइट? द मीडिया is blaming him for influencing key witnesses to protect his son, right? He is being blamed by the media for influencing key witnesses involved in the case. Severe criticism of his father-son duo, both by the media and some social activists, is damaging the image of the party. अब इस सिचुएशन से हो क्या रहा है, जो पार्टी है, कौन सी पार्टी? एनपीपी पार्टी, उसकी इमेज भी टार्निश हो रही है, उसकी इमेज खराब हो रही है, राइट? हाउएवर मिस्टर लॉयल, नाउ हाउएवर के साथ हम हमेशा थोड़ा केयरफुल हो जाते हैं. हाउएवर मिस्टर लॉयल हैज सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स विद इन द पार्टी एंड इज कंसिडर्ड एन एसेट टू द पार्टी. तो इतना इजी नहीं होने वाला है कि सब कुछ खत्म कर दो, उस बंदे को निकाल दो. बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन मिस्टर लॉयल हैज सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स. सिग्निफिकेंट मतलब कहीं ना कहीं इंपैक्टफुल है. So Mr. Loyal has significant followers within the party and is considered an asset to the party. ठीक है? Any harsh decision against Mr. Loyal would adversely affect the future of NPP. Right? So we cannot do anything. Right? कुछ भी कर दो आप, Loyal को निकाल दो या Loyal को कुछ भी बोल दो, वो सब नहीं possible होने वाला है. Any harsh decision against Mr. Loyal would adversely affect the future of NPP and could even lead to a split in the party. So this is not going to be beneficial for the NPP party. काफी इमेज खराब हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं. दिस वुड बेनिफिट द ऑपोजिशन. तो ये ऑपोजिशन को फायदा हो जाएगा, राइट? क्लासिक स्ट्रैटेजी केस, काफी कुछ इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है? थोड़ा एचआर का भी इसमें पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं.
Now we have to take decisions, very important decisions. Interesting set, I would say, interesting situation. Let's read the questions and see if we can deal with it. So the first problem: which of the following actions would adversely affect both NPP and Mr. Loyal the most? So first understand the question very clearly. Which of the following actions would adversely, negatively impact, right? Adversely मतलब सबसे ज़्यादा impact करेगा, affect both NPP and Mr. Loyal the most. सबसे ज़्यादा खराब स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पिक करना है, ठीक है? सबसे ज़्यादा खराब स्टेटमेंट जो हो सकता है मिस्टर लॉयल के लिए भी और एनपीपी के लिए, ठीक है? अब लॉयल के लिए सबसे खराब स्टेटमेंट तो मेरे को ही दिख रहा है कि उसको निकाल दो, ऐसा कुछ. लेट बट रीड दी ऑप्शंस. टेक नो एक्शन अगेंस्ट मिस्टर लॉयल. एक्ट, हमने कोई एक्शन नहीं लिया. दिस कुड नॉट बी द लीस्ट लाइक एडवर्स, like most adverse, but we'll have to read the options. So take no action against Mr. Loyal, this is the first statement. Second, suspend Mr. Prodigal from the party with immediate effect, right? Effect, और सन को निकाल दिया हमने. थर्ड स्टेटमेंट, एक्सपेल मिस्टर लॉयल फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट. नाउ अभी आगे पढ़ने से पहले ही देखो, इन तीनों स्टेटमेंट में मैं कंपैरिजन करना ऑलरेडी स्टार्ट कर सकता हूँ. मे बी आई विल एंड अप विद द राइट आंसर. दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे. सो सेकेंड एंड थर्ड को अगर आप देखो, सस्पेंड मिस्टर प्रोडिगल फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट, इसमें क्या होगा, उसका सन निकाला जाएगा. सन निकाला जाएगा तो पहले आपका मिस्टर लॉयल उससे खुश नहीं होगा. लॉयल खुश नहीं होगा तो मे बी ही विल से समथिंग अगेंस्ट द पार्टी. वो इनको फोर्स करेगा कि यू कैन नॉट डू दिस. तो मे बी एट अ लेटर स्टेज वो बोलेगा नहीं, आई एम ऑल्सो लिविंग द पार्टी, आई हैव सपोर्टर्स इन द पार्टी. बट दिस इज अ सीक्वेंस जो कि थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज हिज सन हैज बीन एक्सपेल्ड फर्स्ट, ठीक है? एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, अगर आप थर्ड को इवेलुएट करो, एक्सपेल मिस्टर लॉयल फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट. अब अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर आप मिस्टर लॉयल को ही निकाल दोगे तुरंत से चीज़ें खराब हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि मिस्टर लॉयल जाएगा तो उसके साथ ये जो उसके फॉलोअर है वो तुरंत निकलेंगे. वो निकलेंगे, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था तो उसने क्या बोला था, इट कुड इवन लीड टू अ स्प्लिट इन द पार्टी. तो आउट ऑफ दीज टू ऑप्शन में को एक बात तो क्लियर है, suspending Mr. Prodigal has a lower effect than expelling Mr. Loyal himself. आप उस फादर को डायरेक्टली निकाल दोगे तो और ज़्यादा खराब होने वाला है पार्टी के भी सेंस से, और मिस्टर लॉयल को तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करेगा ही. मिस्टर लॉयल को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा क्योंकि उसी को आप निकाल दे रहे हो. तो सेकंड एंड थर्ड में डेफिनेटली आई विल बी एलिमिनेटिंग द सेकंड वन. एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑप्शन, टेक नो एक्शन अगेंस्ट मिस्टर लॉयल और एक्सपेल मिस्टर लॉयल, तो ऑब्वियसली ये तो लॉयल को ज़्यादा इंपैक्ट करने वाला है ना, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकता हूँ. So I have this third statement which is very nice with respect to the criteria mentioned. जो हमारे स्टेक होल्डर है एनपीपी पार्टी और मिस्टर लॉयल, ये दोनों को एक साथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, लॉयल को भी और पार्टी को भी, ठीक है? सो दिस कुड बी माई राइट आंसर, बट आई विल रीड द फर्दर स्टेटमेंट एज वेल. बैन मिस्टर लॉयल फ्रॉम एंटरिंग पार्टी प्रेमाइसेस टिल कंप्लीशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग. अब इसमें भी अगर आप कंपैरेटिव तरीके से देखो, थर्ड स्टेटमेंट में आप डायरेक्टली उसको निकाल दे रहे हो, फोर्थ स्टेटमेंट में आप उसको करंट सिचुएशन जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाती है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप बैन कर रहे हो. तो अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे कौन सा ज़्यादा स्टेटमेंट खराब है, आपका थर्ड स्टेटमेंट खराब है. थर्ड इज गोइंग टू हैव मोर इम्पैक्ट इन अ एडवर्स मैनर. तो थर्ड एंड फोर्थ में भी कंपैरिजन वाइज अगर करोगे तो फोर्थ को आप एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज आपको ज़्यादा नेगेटिव ढूंढना है. एंड इनिशिएट एन इंटरनल इंक्वायरी टू फाइंड द ट्रूथ. अगेन थर्ड और फिफ्थ में अगर आप कंपेयर करो, आप इंक्वायरी बैठाओगे, उससे ज़्यादा खराब है ना कि आप डायरेक्टली मिस्टर लॉयल को एक्सपेल कर दे रहे हो. सो अगेन थर्ड एंड फिफ्थ में हम कंपेयर भी करके जाए तो फिफ्थ स्टेटमेंट विल गेट एलिमिनेटेड एंड थर्ड वुड बी माई करेक्ट आंसर, राइट? सो कंपैरेटिव टोन में अगर आप सीधे कंपेयर करना स्टार्ट करो अपने स्टेटमेंट्स को, विल अल्टीमेटली एंड अप एट द राइट आंसर, राइट? दिस इज अ गुड वे टू नॉट गेट कंफ्यूज विद इन द ऑप्शंस, right? Now let's move to the second problem. Okay, so the initial part remains same. We have more information, right? Follow-up information. Mr. Opportunist, a veteran member of the NPP, right? The same party, veteran member of the NPP, stakes his claim to be nominated as a NPP candidate in the upcoming election. Now, वो मौके का फायदा देख के he is trying to state his claim to be nominated as a NPP candidate in the upcoming election. Mr. Opportunist presented the following arguments in favor of his candidature to the NPP executive committee. तो उसने कुछ arguments दिए in his favor कि भाई मुझे क्यों support करो, why do you need to nominate me as a NPP candidate in the upcoming election.
नाउ एक बार क्वेश्चन में पढ़ना चाहूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड बेस्ट स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ मिस्टर अपॉर्चुनिटी। राइट, सो बेसिकली वो जो उसने 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए उसमें से सबसे ज्यादा उसके कैंडिडेचर को, राइट, स्ट्रेंथन द क्लेम या उसका कैंडिडेचर को या उसके नॉमिनेशन को सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स एंड इवैल्यूएट देम। मिस्टर लॉयल्स कैंडिडेचर इन द अपकमिंग इलेक्शन। मिस्टर लॉयल कौन? वही आपका फादर, राइट, whose son Mr. Prodigal has been accused. Mr. Loyal's candidature in the upcoming election will adversely impact NPP's chances. Hence, the party should not nominate him. This is a good statement in his favor. In what? Opportunity's favor. क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि लॉयल का कैंडिडेचर क्या करेगा करंट इलेक्शन में। अगर मिस्टर लॉयल खड़ा हुआ, बिकॉज उसके सन के अगेंस्ट केस चल रहा है, मीडिया भी उसके अगेंस्ट है, तो अगर लॉयल उस इलेक्शन में खड़ा हुआ तो वो एनपीपी, दैट इज पार्टी की इमेज को टार्निश करेगा, खराब करेगा। हेंस द पार्टी शुड नॉट नॉमिनेट हिम। सो दिस इज अ गुड स्टेटमेंट, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू सपोर्ट मिस्टर अपॉर्चुनिटीज फेवर, बिकॉज पार्टी के करस्पॉन्डिंग अगर आप स्टेक होल्डर्स देखो तो पार्टी है आपका, यहाँ पे पार्टी भी है और एक्चुअली में आपका अपॉर्चुनिटीज भी है। तो इन दोनों स्टेक होल्डर में अगर आप इस कंडीशन को देखोगे, मिस्टर लॉयल कैंडिडेट अपकमिंग इलेक्शन विल एडवर्सली इम्पैक्ट एनपीपी, तो ये एनपीपी का जो प्रॉब्लम है ना, बिकॉज मिस्टर लॉयल के अगेंस्ट तो आपका वो जो भी केस चल रहा है उसके अगेंस्ट नहीं, उसके सन के अगेंस्ट, बट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाला है क्योंकि उसका सन इन्वॉल्व है, राइट। तो उसको अगर आप खड़ा करोगे तो मीडिया आपके अगेंस्ट बोल सकता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम का एक तरीके से रेजोल्यूशन है, बिकॉज वो खड़ा हुआ तो आपका पार्टी की इमेज खराब होने वाली है। हेंस क्या कर दो आप मिस्टर अपॉर्चुनिस्ट को, क्योंकि एक वेटरन मेंबर भी है, पुराना मेंबर भी है, उसको आप नॉमिनेट कर दो। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू सपोर्ट मिस्टर अपॉर्चुनिटिस्ट क्लेम। तो फर्स्ट वाला तो मेरा डेफिनेटली होना चाहिए। अब मेरा ऑप्शन ही इस तरीके से दिख रहा है कि मेरे को फर्स्ट तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो फर्स्ट के साथ या तो थर्ड होगा या तो फर्स्ट के साथ फोर्थ होगा, बट विल रीड ऑल दी ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन में कितना क्लोजनेस थी, कितना था आपका डिफिकल्ट। लेट्स ट्राई एलिमिनेट द ऑप्शन, राइट। First, though, we are done. Second, the party should call a press conference to disown Mr. Loyal. This would enhance the party's image. Now, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ प्रॉब्लम है। ऑल्सो मेरे को ये पता है कि फर्स्ट के साथ सेकंड देखो वैसे भी नहीं आने वाला है, तो सेकंड तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? पार्टी शुड कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू डिसोन मिस्टर लॉयल, दिस वुड इनहांस द पार्टीज इमेज। अब ये वाला जो एक स्टेटमेंट है ना, ये क्या है ना, ये प्रॉब्लमैटिक है। प्रॉब्लमैटिक क्यों है? द पार्टी शुड कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू डिसोन मिस्टर लॉयल। लॉयल को हटा दोगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो तुरंत आ जाएगा ना, तो इट्स नॉट गोइंग टू इम्प्रूव द पार्टीज इमेज। तो एक तो पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, राइट। अगर आप लॉयल को ऐसे डायरेक्टली निकाल दोगे तो पार्टी के लिए अच्छा नहीं होने वाला है, राइट। एक पॉइंट ये भी है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि आपको इस मिस्टर अपॉर्चुनिटिस्ट के भी पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, उसका क्या इसमें रोल होने वाला है, राइट। उसको क्यों नॉमिनेट करें। तो कहीं ना कहीं आपका ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा मिस्टर लॉयल को निकाल के, राइट। अब इससे इसमें अपॉर्चुनिटीज कहाँ फिट होता है वो भी अपने को नहीं दिख रहा। जस्ट बिकॉज पार्टी की इमेज आपकी अच्छी हो जाएगी ये हम क्लियर कट बोल नहीं सकते हैं। सो सेकंड वाला स्टेटमेंट इज नॉट गुड। थर्ड स्टेटमेंट, द पार्टी वुड नॉट बी एबल टू टेक एनी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मिस्टर लॉयल इफ ही गेट्स री इलेक्टेड। अगेन दिस इज नॉट समथिंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट। द पार्टी वुड नॉट be able to take any strong disciplinary action against Mr. Loyal if he gets re-elected। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि ये स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, इफ यू रीड दिस वेरी क्लोजली, द पार्टी वुड नॉट बी एबल टू टेक एनी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मिस्टर लॉयल। तो ये तो कभी प्रॉब्लम था ही नहीं ना, डिसिप्लिनरी एक्शन आपका मिस्टर लॉयल के अगेंस्ट हम लेने ही कहाँ वाले थे। इनिशियल जो आपका प्रॉब्लम थी, जो प्रीवियस केस में आपका डिस्क्राइब्ड है, प्रॉब्लम किसके साथ है? मिस्टर प्रोडिगल के साथ है। यहाँ पे आप कह रहे हो स्टेटमेंट में द पार्टी वुड नॉट बी एबल टू टेक एनी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मिस्टर लॉयल इफ ही गेट्स री इलेक्टेड। तो ये तो प्रॉब्लमैटिक है। ये क्या कर रहा है? ये इशू मिस्टर लॉयल के करस्पॉन्डिंग बना दे रहा है, बट इशू मिस्टर लॉयल के करस्पॉन्डिंग अभी था ही नहीं, उसके सन के करस्पॉन्डिंग था। सो इसकी फ्रेमिंग गलत है। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट मिस्टर लॉयल, द पार्टी वॉज नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसिप्लिनरी एक्शन मिस्टर लॉयल। तो थर्ड स्टेटमेंट तो मैं वैसे भी एलिमिनेट कर दूंगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही नहीं है। फर्स्ट के साथ मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर एलिमिनेशन के थ्रू। लेट्स रीड द फोर्थ स्टेटमेंट। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गुडविल, आई हैव अ लॉट ऑफ गुडविल एंड सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। नाउ दिस इज वेरी नाइस। क्यों नाइस है? बिकॉज अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट साथ में देखो, राइट, आपको इंटायर पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट को क्लियर कट पढ़ो, अब क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोलता है कि मिस्टर लॉयर्स कैंडिडेचर इन द अपकमिंग इलेक्शन विल एडवर्सली इम्पैक्ट एनपीपी's चांसेस, राइट, हेंस द पार्टी शुड नॉट नॉमिनेट हिम। तो उसको खड़ा करने से नेगेटिव इमेज क्रिएट होने वाली है, इसलिए उसको मत खड़ा करो, ठीक है। तो ये पार्टी के इमेज को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करता है। इफ आई रीड दिस इन कंजंक्शन विद द फोर्थ स्टेटमेंट, अब वो क्या बोलता है, आई हैव अ लॉट ऑफ गुडविल एंड सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो याद करो एक प्रॉब्लम ये थी ना कि मिस्टर लॉयल के बहुत सारे फॉलोअर्स थे। मान लो आपने उसको जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन विद मिस्टर प्रोडिगल एंड एवरीथिंग आपने उसको नॉमिनेट नहीं करा, तो हो सकता है वो पार्टी छोड़ दे। अब पार्टी छोड़ेगा तो प्रॉब्लम क्या थी पार्टी छोड़ने में मिस्टर लॉयल की, बिकॉज ही हैड सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स। सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स है तो मे बी देयर इज ब्रेकेज इन द लाइक पार्टी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बट ये स्टेटमेंट जो आपका फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, ये उस पार्ट को रिजॉल्व करने के अराउंड देखता है। आई हैव अ लॉट ऑफ गुडविल एंड सिग्निफिकेंट फॉलोअर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो like Mr. Loyal, Mr. Opportunist, who is also a veteran member of LPP, has a lot of goodwill and significant followers in the constituency. तो कहीं ना कहीं ये आपका पार्टी का एक मेजोरिटी लाइक होल्ड कर रहा है फिर विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोअर्स। तो मिस्टर लॉयल के जाने से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज ये भी पर्सन के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ता हूँ तो ये दोनों एंड्स पे आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। यू विल गेट अ कैंडिडेट, लाइक यू विल गेट अ लाइक नॉमिनेशन ऑल्सो, पार्टी की इमेज भी क्लियर हो जाएगी मिस्टर लॉयल को अगर हम टिकट वगैरह ना दें तो। ऑल्सो पार्टी आपका ब्रेक नहीं होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, बिकॉज लाइक मिस्टर लॉयल, मिस्टर अपॉर्चुनिटिस्ट ऑल्सो हैज अ गुड या सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ फॉलोअर्स विद इन द पार्टी। सो इसीलिए फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर वेरी गुड। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाना चाहिए, नन ऑफ माई क्लोज रिलेटिव्स इज इन टू एक्टिव पॉलिटिक्स। दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विथ हिज आर्ग्यूमेंट्स। उसका आर्ग्यूमेंट क्या था, उसको मेरे को नॉमिनेट कर दो, तो ये कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, तो फिफ्थ वाला वैसे भी एलिमिनेट हो जाता। तो ये ऑप्शन भी आप डायरेक्टली वैसे एलिमिनेट कर सकते थे, फर्स्ट आपको रखना ही था, फर्स्ट के साथ आपका फोर्थ वाला वुड मेक परफेक्ट सेंस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो दिस विल बी ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो यहाँ पे थोड़े स्ट्रैटेजी बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने डील करे हुए हैं। नाउ जितना भी आपका बेसिक्स था, लेट यू नो, तो जितना भी आपका बेसिक्स था ना, वी हैव कवर्ड इन द फर्स्ट 4 पार्ट्स। तो ये रिकॉर्डेड सेशंस थे। फ्रॉम द 17th और 18th onward we'll get a schedule for that. We'll be solving a lot of previous papers starting from the recent one. We'll go backwards. We'll solve mostly all the previous papers, and through like different problems we'll do a lot of practice through live sessions, right? So that takes care of your practice wala part. I hope you have understood the concepts, different types of strategies, methodologies involved, कैसे option eliminate करना होता है, the basic understanding what is decision making, right? So I hope you have understood this, and see you in the next video onwards. Thank you.